We must begin every day और हमें प्रतिदिन इससे with, हमें शुरुआत करना है the recognition this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. और ये जानते हो कि आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया और हम उसमें आनंदित होंगे। Even if we don't say those words, और यहाँ तक कि हम उन शब्दों को यदि नहीं भी बोलते अपने मुख से, this is the day the Lord has made. और आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया The है devil did not make it. और शैतान ने नहीं बनाया है We did not make it. और हमने भी उसे नहीं बनाया है। The Lord has made this new day. और प्रभु ने ये नया दिन बनाया है। A day will come when Christ comes back, when he'll wind up. There'll be no more days. It'll be eternity. और जब उसका आगमन होगा, जब वो वापस आएगा, तब कोई भी दिन नहीं होगा और अनंत काल होगा। The Lord is in control of this universe. और परमेश्वर इस संसार का नियंत्रण करता है। Please remember this always. और हमेशा इस चीज को आप स्मरण करें। My heavenly Father runs this universe. और मेरा स्वर्गीय पिता इस संसार, इस ब्रह्मांड को चलाता है। Yeah, so that's very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है Because so many believers are depressed and discouraged as if the devil runs this universe. और आज बहुत सारे मसीह जो है बहुत ही उदास और निराश है, जैसे कि शैतान इस संसार को चला रहा है, नियंत्रित कर रहा है। Whenever you grumble or complain, you are actually saying, "Oh Satan, you are running this universe." और जब कभी आप कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते, तो आप ये कहते कि शैतान तो इस संसार को चला रहा है। For these next few minutes, the devil's running this universe. और कुछ आगे के जो मिनट जो है वो शैतान इस संसार को चला That's रहा why I है। have to grumble and complain. और इसलिए मुझे शिकायत करना पड़ रहा है, कुड़कुड़ाना पड़ रहा है। You believe that your heavenly Father runs this universe, you will never grumble or complain. और यदि आप विश्वास करते कि आपका स्वर्गीय पिता इस संसार को चलाता है, तो कभी भी आप That शिकायत is नहीं one of the करेंगे। wonderful things that happened to me when I understood the kingdom of God. और यही सबसे अद्भुत बात मेरे साथ बनी जब मैंने परमेश्वर के राज्य को समझा। I told you for many years I thought the kingdom of God is something I have to seek doing missionary work or preaching somewhere. और जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सालों तक मेरी समझ ये थी परमेश्वर के राज्य के बारे में कि बहुत सारे मिशनरी या बाहरी सेवा के कामकाज करना। Till I understood what Jesus said in Luke 17. Please look at this verse. और लूका 17 के अंदर जो यीशु मसीह ने वचन कहा उसको हम देखें। Luke 17 लूका 17 अध्याय verse 20. उसका 20 वचन। Jesus was questioned by the Pharisees as to when is the kingdom of God coming. और फरीसी यहाँ पर यीशु मसीह से प्रश्न पूछ रहे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। And listen to this. और उस यहाँ पर उत्तर The सुने। kingdom of God is not coming with signs to be observed. और यहाँ पे उत्तर को देखिए, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नहीं आता। A lot of people think it's going to be with signs and miracles. One day the kingdom of God will come. और बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि चिन्ह चमत्कार के साथ परमेश्वर का राज्य एक दिन आएगा। He said it is not with signs. और यहाँ पे लिखा चिन्ह और चमत्कारों के साथ And it नहीं is है। not that you say look here or look there. और ये भी नहीं है कि यहाँ देखो वहाँ देखो, Because the kingdom of God is inside you. क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है। It is inside you. वो आपके भीतर है। That is what Jesus said. The kingdom of God is within us. और यीशु मसीह ने यही कहा है कि परमेश्वर का राज्य हमारे भीतर है। And when did that kingdom come? और ये राज्य कब आया है? That also Jesus said in Mark chapter 9. मरकुस उसका 9 अध्याय। First of all, where is the kingdom of God coming? और कहाँ से परमेश्वर का राज्य आ रहा है? Where? कहाँ? Not outside, बाहर नहीं, within us. लेकिन हमारे भीतर। Next question. दूसरा जो प्रश्न है, When is it coming? कब परमेश्वर का राज्य आ रहा है? Not when Christ returns at the end of time. और जब समय का अंत होगा, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, तब नहीं आएगा। See Mark chapter 9 and verse 1. मरकुस उसका 9 अध्याय वचन 1। Mark chapter 9 and verse 1. मरकुस 9:1। And Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, Truly I say to you, और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, there are some people standing here right now who will not die till the kingdom of God has come with power. और वो कहता है कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ न देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। Is there anybody living here, living on earth today who was living 2000 years ago when Jesus said that? और यीशु मसीह ने जब कहा, ऐसा कोई यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जब यीशु मसीह ने 2000 पहले कहा तब वो जी वहाँ पर था? No. नहीं। All those people have died. सारे लोग उनकी Who heard मृत्यु हो that? चुकी है। किसने सुना है? But he said, some of you standing here will not die till they see
the kingdom of God come with power. लेकिन वो कहते तुम में से यहाँ पर खड़े जो परमेश्वर के राज्य को सामर्थ में आते हुए जब तक न देखें मृत्यु that नहीं means there देखेंगे। were some people who listened to Jesus at that time who actually lived to see the kingdom of God come with power. और इसका मतलब ये कि उस समय जिन्होंने यीशु मसीह को सुना उन्होंने परमेश्वर के राज्य को सामर्थ में आते हुए And देखा the था। way to find out when that happened और ये जो रास्ता जिससे हम जान सकते हैं कि कब वो हुआ, is to think of that word power. और ये इस तरह हम जान सकते हैं उस सामर्थ के बारे में सोचने के बाद। One, the kingdom of God is within you. पहला, परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है। Secondly, it will come with power while some people there are still living. और जब वहां पर लोग जीवित थे वहां पर वो परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ वहां आया। Then you turn to Acts chapter 1. और वहां पर प्रेरितों के काम पहले अध्याय में हम जाते हैं। And Jesus said in Acts chapter 1 and verse 8, और प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 8, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. और ये लिखता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। And I told you the other day how in the Old Testament the Holy Spirit was only upon people. और जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर होता था। He could not come inside वो पवित्र आत्मा भीतर नहीं आ पाता था। because the way into man's spirit was closed due to sin. और क्योंकि पाप के कारण मनुष्य की आत्मा के अंदर जाने का, भीतर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। And the Holy Spirit could never dwell inside a heart in which there was sin. और जिस हृदय के अंदर पाप है वहां पवित्र आत्मा वास नहीं कर पाता था। So something had to be done to remove that sin in man's heart. और मनुष्य के हृदय से उस पाप को निकालने के लिए कुछ न कुछ करना था। And all the thousands of bulls and goats sacrificed in the Old Testament temple could not cleanse that. और पुराने नियम में हजारों भेड़ों बकरियां और बैलों को जो बलिदान किया उनका लहू काफी नहीं था। But when Jesus died and his blood was shed, that could cleanse our sin. और जब यीशु मसीह मरा उसके लहू के द्वारा हमारे पाप साफ या पूरी तरह से शुद्ध And होते when he हैं। ascended up to heaven, और जब वो स्वर्ग पर उतरा चला गया the virtue of that blood that was shed on earth, और जो वो उस धरती पर लहू बहा गया उस कारण के God could righteously forgive our sin. और उस कारण परमेश्वर पूरी तरह से धार्मिकता के कारण हमें पूरी तरह से साफ करता है। Many people have not understood how serious sin is. और बहुत सारे लोगों ने इस पाप को गंभीर रूप से नहीं समझा है। They think committing a sin is like breaking a plate or something like that. और वो समझते पाप करना तो एक प्लेट को तोड़ने जैसा है। Some people say, a little child can say, oh, if I broke a plate and I say, Mummy, I'm sorry, Mummy will forgive me immediately. और एक छोटे बच्चे के समान जो कहता है प्लेट तोड़ के माता से कहता है कि मम्मी मुझे माफ कर, ये हो गया। और इस प्रकार हम पाप को लेते हैं। Why can't God forgive my sin? और क्यों परमेश्वर मेरे पापों को क्यों नहीं माफ करेगा? I say, listen, that's because your sin is not like breaking a plate. और क्योंकि आपका पाप जो है वो प्लेट तोड़ने के समान, कोई गलती के समान नहीं है। The smallest sin और सबसे छोटे से छोटा in your पाप thoughts आपके विचारों में, or your words आपके शब्दों में, or your actions और आपके कार्यों में, or your attitudes और to people और आपके लोगों के प्रति स्वभाव में, or the bad motive with which you do a good thing. और जो अच्छे काम आप बुरे जो इच्छाएं हैं या इरादों के साथ आप करते For हैं। example, उदाहरण के तौर if I पे preach, यदि मैं प्रचार करता it's a हूँ, good thing, अच्छी बात है, wonderful message, अद्भुत प्रचार but ये है, the motive is to get money. लेकिन उसका भीतर का जो इरादा जो That है वो becomes a पैसा sin. है और ये पाप है। Now you may say, I don't preach for money. और ये आप कह सकते हैं कि मैं बस पैसों के लिए प्रचार नहीं If करता, you preach for honor, लेकिन यदि आप आदर पाने के लिए प्रचार करते that हैं you want people to think you're a better preacher than somebody else, और आप चाहते कि लोग आपके बारे में सोचे कि आप और लोगों से अधिक बेहतर then प्रचारक you हैं, are as bad a preacher as the other guy who's preaching for तो money. आप उतने ही प्रचारक जो पैसों के पीछे पड़े उतने ही आप बदतर हैं। There is no difference between seeking honor or seeking money. और पैसों के पीछे भागना या आदर के पीछे भागना, इन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं Both are है। sin. ये दोनों एक समान हैं। Many people in CFC who don't seek money seek for honor. और सीएफसी के अंदर शायद वो पैसे नहीं ढूंढते होंगे लेकिन वो आदर की खोज में They है। are as bad a preacher as any Pentecostal who seeks for money. और यहाँ तक कि वे ऐसे इतने बदतर है जितने कि पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं के अंदर प्रचारक पैसों की खोज But करते they are हैं। proud we don't seek for money. और वे कहते हैं वो तो घमंड से भरे हैं कि हम पैसों की But खोज they नहीं try to करते, show I'm a better elder than that person, I'm a better preacher than that person. लेकिन वो लोगों को बताने की कोशिश करते मैं उस व्यक्ति से अच्छा प्राचीन, And they- उस व्यक्ति से अच्छा मसीही में हूँ। The sin is another color, that's all. It is still sin. और ये पाप का एक अलग रूप है या अलग रंग है, लेकिन वो पाप ही है। All those things, every single sin is equivalent to about 100 murders. और एक छोटा सा छोटा पाप वो 100 हत्या करने के समान, एक समान ही वो है। Not like breaking a plate. तो ये प्लेट तोड़ने के समान नहीं Do है। you believe in God's eyes one sin is equal to 100 murders? और आप क्या आप जान पाते कि एक छोटा सा पाप एक 1000 या एक 100 हत्या करने Now समान you है। realize if a man has committed 100 murders, he must definitely be hanged, without a doubt. और आप जानते हैं कि जितने इतने हत्या किया है वो जरूर वो फांसी के फंदे पर चढ़ने के लायक है। God is so holy और परमेश्वर इतना that पवित्र है every sin is like that.
Every sin is like that. और हर एक पाप ऐसा ही है। Thought in word, in thought, all sins. और Every sin is like that. और हर एक पाप ऐसा ही है, Like committing many murders. बहुत सारे जैसे हत्या करते हैं। So, if I sin in my words और यदि मैं अपने शब्दों में पाप or करता in my हूँ thoughts, और मेरे विचारों में, it is the same as my committing many murders. और ये ऐसा ही है जैसे मैंने बहुत सारे हत्या किया है। So please remember this. और इसको हमेशा आप याद रखें। So sin is a very, very serious thing. और पाप जो है बहुत ही गंभीर चीज़ है। And that is why Jesus had to die. There was no other way for that sin to be removed. और इसलिए यीशु मसीह को मरना था क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था जिसके द्वारा उस पाप को निकाला जाए। And when that sin was removed, then the Holy Spirit could come inside. और जब उस पाप को निकाला गया तब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आया। That is why it says in John 7 and verse 39 और यूहन्ना 7:39 में इस प्रकार लिखा गया है that the Holy Spirit could not be given till Jesus was glorified. और जब तक यीशु मसीह महिमावान नहीं किया तब तक पवित्र आत्मा उन्हें नहीं दिया गया था। And so this happened on the day of Pentecost. और इसलिए ये जो है पेंतिकोस के दिन में हुआ। And on the day of Pentecost, the Holy Spirit came within. और पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा जो है हमारे भीतर आया। Then the kingdom of God came in power. और तब परमेश्वर का जो राज्य है वो सामर्थ के साथ वहां पर उतरा। So the kingdom of God is within. इसलिए परमेश्वर का राज्य जो है हमारे And भीतर है। it comes within you when God can fill you with His Holy Spirit. और जब वो आपके भीतर आता है तब पवित्र आत्मा आपको भरता है। It's not enough to get forgiveness of your sins. और केवल आपके पापों से क्षमा प्राप्त करना उतना ही काफी नहीं है। For the kingdom of God to come within you with power, you must be filled with the Holy Spirit. और यदि परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ आपके ऊपर उतरना है तो आपको पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। The greatest blessing in the old covenant was health and wealth. और पुराने नियम के अंदर बहुत ही जो आशीषें थी वो जो स्वास्थ्य था और संपन्नता थी। And the greatest blessing in the new covenant is to be filled with the Holy Spirit. और नए नियम की सबसे बड़ी जो आशीष है वो पवित्र आत्मा से भरना है। And to partake thereby of God's own nature. और उसके द्वारा परमेश्वर का जो दिव्य स्वभाव है उसमें सहभागी होना है। The greatest thing is not victory over sin. और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हम पाप के ऊपर विजय पाए, Partake of God's own nature. लेकिन परमेश्वर जो खुद का उसका स्वभाव है उसके दिव्य स्वभाव में हम सहभागी हो सके। God's nature is righteousness, peace and joy. परमेश्वर का स्वभाव जो है धार्मिकता, मेल मिलाप, शांति और आनंद है। And the wonderful message of the gospel is that God gives us that nature. और सुसमाचार का यही संदेश है कि परमेश्वर हमको वो स्वभाव देता है। All the blessings of health and wealth are zero compared to God's nature. और परमेश्वर के स्वभाव की तुलना के अंदर ये जो सुसमाचार स्वास्थ्य का और संपन्नता का है वो शून्य है। So those who seek after health and wealth are seeking for garbage compared to seeking for God's nature. और परमेश्वर के स्वभाव के बदले में जो लोग स्वास्थ्य और संपन्नता को खोज रहे हैं वो इस कचरे को खोजने के समान हैं। And see how many people in this world are seeking for this rubbish. और अब देखिए संसार में कितने सारे लोग इस कचरे को ढूंढ रहे हैं। I'm not saying money is rubbish. मैं ये नहीं कहता कि पैसा एक कचरा है, But what is 1 paisa compared to 1 crore rupees? लेकिन आप तुलना करें एक पैसा और 1 करोड़ रुपए की तुलना आप करके देखें। Compared to 1 crore rupees, 1 paisa is rubbish. और 1 करोड़ की तुलना के अंदर एक पैसा जो है वो कचरा है। And all the money in the world is rubbish compared to God's nature in the same way. और परमेश्वर के स्वभाव की तुलना में संसार का सारा पैसा उसी प्रकार से पूरी तरह से कचरा है। So when people are not seeking for God's nature in their life, और जो लोग अपने जीवनों में परमेश्वर का स्वभाव नहीं but are ढूंढते हैं seeking for health and wealth, और जो स्वास्थ्य और संपन्नता को उनके जीवन में खोजते हैं, they are like a foolish man. और वो एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति के समान हैं He is offered 1 paisa or 1 crore rupees and he takes 1 paisa. और जिसको एक पैसा और 1 करोड़ रुपया दिया गया लेकिन वो 1 पैसे को ले लेता है। What would you think of such a person? और ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचेंगे? You try that with a little baby, for example, 1-year-old child. और 1 साल का बच्चा है उसके साथ आप इसको करके देखें You give him some 5 rupee toy which just makes a lot of noise. और आपको 5 रुपए का उसको एक खिलौना दे जो बहुत शोर करता है And you give him a 2000 rupee note. और उसको 1000 का आप नोट दे, All those children will take that 5 rupee toy. और सारे उम्र के वो जो बच्चे वो 5 रुपए का वो खिलौना लेंगे। That is more valuable to that child than this 2000 rupee note. और उसको पता नहीं है वो 2000 का जो नोट है उसका क्या But करना an है। adult knows that 5 rupee toy is nothing. This 2000 rupee note is लेकिन valuable. बड़े जो सयाने लोग हैं वो जानते हैं कि 5 रुपए का जो खिलौना कुछ भी No. नहीं है उस हजारों करोड़ों रुपयों की तुलना में। When I see in so many churches people
responding to a gospel that will make you healthy and wealthy in this world. और मैं बहुत सारे ऐसे जब लोगों को देखता हूं जो संपन्नता और स्वास्थ्य का जो सुसमाचार सुना जाता है But उसके प्रति you will प्रतिक्रिया be करते हैं, defeated by sin. लेकिन वो पाप से पराजित होते हैं। And here is another gospel यहाँ और एक समाचार है, where you will get overcome sin और जहां पर पापों के ऊपर विजय and you प्राप्त will करना है partake of God's nature. और परमेश्वर के स्वभाव में And सहभागी ना है, और You may not be healthy or wealthy, but you'll have enough for all your needs on earth. और यहाँ तक आप स्वास्थ्य से या बहुत ही संपन्नता से भरपूर नहीं होंगे, लेकिन आपकी जरूरतों के लिए पर्याप्त आपके पास होगा। A wise person will choose that. और जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इसको चुनेगा, That is the kingdom of God. और ये परमेश्वर का राज्य है।